So last lecture we had discussed asexual reproduction in lower organisms. Now we are going to see how the asexual reproduction takes place in angiosperms, that is the higher category of plants. Okay. Now the asexual reproductive method in angiosperms is one of them is vegetative propagation. Now vegetative propagation जो होता है, what do you mean by this? When the parts of the plant like root, stem या leaf या bud of the plant is involved in reproduction instead of the flower or the seed. If these parts are involved, these are the vegetative parts. जब इससे propagation होता है, इससे reproduction हो सकता है, then it is known as vegetative propagation. Now ये जो भी parts use होंगे उनको propagules बोलते हैं, और ये जो propagules होते हैं जिनसे propagation होगा, they should have adequate reserve food material. Okay, so that till the plant develops completely, उसमें leaves आ सकते हैं, photosynthesis हो सकता है, तब तक वो reserve food उसको energy देगा. And plus उस vegetative part में एक growing point होना ज़रूरी है. Okay, then favorable condition जब भी आएगी, ये propagule complete independent plant में convert हो सकता है. Now vegetative propagation क्या है ये हमने जान लिया. इसके दो methods होते हैं. One is natural method and other is artificial method. So naturally भी plants खुद को vegetatively propagate करते हैं when they are not able to reproduce sexually. So the natural methods we are going to see now. So first is through the tuberous roots. Now I told you root, stem, leaf, bud, any can be the part जिससे vegetative propagation हो सकता है. तो यहाँ पे पहला हम लोग root से कैसे होता है वो देखेंगे. Now tuberous roots क्या होते हैं? So these are the swollen roots. Okay, जो food storage की वजह से they swell up. Okay, and these are, इसमें अभी हम लोग जो tuberous root रख रहे हैं, this is an underground root. Now root can show modifications. You have seen this in 11th standard in the chapter morphology. तो modified roots भी कैसे propagation में help करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे. ये अभी फ़िलहाल हम लोग tuberous root के बारे में पढ़ते हैं. Now tuberous root, one of the best example is your sweet potato. Okay, तो उसको imagine कर लो and उससे related points को समझने की कोशिश करो. See the tuberous roots, they have adventitious buds, मतलब additional buds होते हैं उन roots में, जबकि you normally see the buds at the nodes in the stem, but यहाँ पे roots के nodes में भी हमको buds मिलेंगे, extra buds, that is the adventitious buds. ये buds favorable condition में sprout हो सकते हैं और उनमें से new plant grow हो सकता है. उसमें जब उस bud में से new plant grow होगा, उसका जो leafy part निकलेगा, upper part shoot, उसको slip बोलते हैं, एंड उसमें ही उन बर्ड्स में से नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स निकल सकते हैं. ओके, नाउ ये जब स्लिप्स बनेंगी, इन स्लिप्स, ये स्लिप्स नेचुरली उस रूट से सेपरेट कैसे होती है, तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट डीजनरेट, एंड देन ये जो स्लिप बना है, स्लिप पार्ट इज नथिंग बट द शूट एंड द रूट रीजन जो नया बना है, डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल प्लांट बनने में शुरू हो जाएगा. ओके, नाउ ट्यूबरस रूट के बारे में, इन स्लिप्स को हम लोग आर्टिफिशियली भी सेपरेट कर सकते हैं. ऐसे स्वीट पोटैटो में जिसमें मल्टीपल स्लिप्स बन चुकी है, छोटे छोटे आउटग्रोथ्स आ चुके हैं, उनको सेपरेट करके हम कमर्शियल कल्टीवेशन भी कर सकते हैं. लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए इसको पर्पसली तोड़ के अलग कर सकते हैं. नाउ ट्यूबरस रूट्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली एडवेंटिशियस. ओके, एंड इफ़ दे आर सिंगल, मतलब एक सिंगल ट्यूबरस रूट दिखता है तो उसको सिंपल ट्यूबरस भी बोलते हैं. एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो है. एंड कभी कभी ट्यूबरस रूट्स ग्रुप में ग्रो होते हैं, या दैट इज इन क्लस्टर्स, तो उनको फेसिकुलेटेड ट्यूबरस बोलते हैं. एग्जाम्पल है एस्पेरेगस एंड डहलिया. नाउ इसके लिए रेफरेंस के लिए यू कैन सी योर 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. आई विल शो यू द पिक्चर. ओके, सो स्वीट पोटैटो, this is a single tuberous root, and dahlia ka, this is a clustered tuberous root. Okay, then next to that, so any of them can show this type of vegetative propagation. अभी ये तो हो गए fleshy roots जो food को store करते हैं and vegetative propagation में help करते हैं. What about the normal non-fleshy roots? Okay, even they can sometimes help in vegetative propagation. इसके example है roots of guava plant, पेरू का झाड़. Okay, dalbergia, that is शिशव, albizia, मुरैया, that is कड़ी पत्ते का झाड़. Okay, इसका propagation हम लोग इसके roots से कर सकते हैं in spite of it being non-fleshy.
देन द नेक्स्ट इज स्टेम ट्यूबर्स. अभी रूट से हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया. नाउ वी विल सी द प्रोपगेशन वाया स्टेम, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स. वी नो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज potato, okay, which belongs to the family Solanum. Tuberosum उसका साइंटिफिक नेम है, कंप्लीट नेम. नाउ ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ओके, उसका लोअर पार्ट, बेसल पार्ट जो होता है, उसमें से उसके जो नोड्स हैं, ओके, वहाँ से एक्सिलरी या एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस निकलती है. ना एक्सिलरी ब्रांच मतलब क्या, एग्जैक्टली नोड के जंक्शन पे जो बड है, एक्सिलरी बड है, उसमें से ब्रांच ग्रो होना शुरू होएगा हॉरिजॉन्टली. एक्स्ट्रा एक्सिलरी मतलब उस मेन एक्सिल के बड को छोड़ के पैरेलली उसी के आजू बाजू जो दूसरे बड्स हैं उसमें से भी ब्रांचेस निकलना शुरू हो सकती है. ना फिर ये जो ब्रांचेस निकलती है उनकी एंडिंग्स में स्वेलिंग हो जाता है और वहाँ पे फूड स्टोर होना शुरू हो जाता है. सो दिस स्वेलिंग पार्ट्स एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस, ओके, दिस इज व्हाट इज अ स्टेम ट्यूबर, क्योंकि स्टेम में से ब्रांचेस निकली और ब्रांचेस के एंड में ट्यूबरस स्वेलिंग हो गए. सो दे आर कॉल्ड स्टेम ट्यूबर्स. देन इसका पिक्चर अगर तुमको देखना है तो इट इज गिवन इन योर 12th, अगेन इन योर 11th टेक्स्ट बुक ऑल्सो and in your 12th standard textbook also. You can see this picture. So we all know this picture, okay. This is an underground stem. इसके branches है और branches के tips में swelling है. That is the stem tubers. Now ये stem tubers propagation में, vegetative propagation में कैसे help करते हैं? We are going to see that. Stem tubers जो होते हैं उसका पहले डायग्राम देख लो तो अंडरस्टैंडिंग विल बिकम ईजी. नाउ दिस डायग्राम्स यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ, यू आर जस्ट सपोज टू नो दिस डायग्राम सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द आंसर. सो दिस इज अ पोटैटो. वी ऑल हैव सीन अ पोटैटो. पोटैटो का ये जो नॉच है, ये स्कार है उसका, जहाँ पे उसका स्टेम या ब्रांच उससे अटैच था. देन यू नो बटाटे को आँख आती है, वैसे आँख इन द सेंस इट इज said to be the eye of the potato, but what is actually botanically it is उसमें उस नॉच में स्केल लीफ होता है, reduced form of leaf, and एक एक्सिलरी बड होता है. न्यूट्रिशन लेके वो बड स्प्राउट हो सकता है. यू कैन सी ओवर योर स्प्राउटिंग बड ऑल्सो. क्लियर? अगर ये ऐसे ही स्प्राउट होने लगे तो धीरे धीरे उनमें से न्यू प्लांट ग्रोथ हो सकता है. नाउ सो स्टेम ट्यूबर्स में जो नॉचेस है उनको आई बोलते हैं, आई टोल्ड यू, एंड उसमें एक्सिलरी बड्स एंड स्केल लीव्स होती है. जब डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है, ओके, लाइक मतलब इफ़ देयर इज़ अनफेवरेबल कंडीशंस एंड ऑल, सो द प्लांट इज़ इन डॉर्मेंट स्टेट, तब तक ये बर्ड्स स्प्राउट नहीं होंगे. बट वंस इट इज़ ओवर, ये एक्सिलरी बर्ड्स जो आई स्पॉट्स हमने देखे वो स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं. एंड जो भी डोमिनेंट रहेगा उसमें से वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा. एंड द रिमेनिंग जो बर्ड्स हैं वो उसकी ग्रोथ रुक सकती है. एंड few of them will start sprouting very vigorously and they will develop into new plants. कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अगेन हम लोग इन इंडिविजुअल स्पॉट्स को, एक पोटैटो में जितने भी बर्ड्स हैं को इंडिविजुअली कट करके सेपरेट करके वी कैन प्लांट देम एंड उनमें से उतने नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी सेपरेटली ग्रो. नाउ व्हाट आर द अदर मॉडिफाइड वैराइटीज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स जिनको हम लोग पेरिनेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें है 3 एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा टू बी स्टडीड. राइजोम है, बल्ब है एंड कॉम है. नाउ टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. जो राइजोम होता है, द बेस्ट एग्जाम्पल है उसका जिंजर एंड टर्मरिक. ओके, दीज आर एक्चुअली जिंजर एंड टर्मरिक जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है. सो राइजोम इज़ नथिंग बट जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है इन द सॉइल. ओके, दिस स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल एंड उसमें अगेन यू कैन सी द नोड्स, उसमें स्केल लीव्स होती है, उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल सकते हैं एंड फेवरेबल क्लाइमेट में इन नोड्स में से एक्स्ट्रा न्यू प्लांट का ग्रोथ हो सकता है. ठीक है, सो इवन दिस कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Then the next is bulb, again a modification of underground stem. So इसका best example है onion and garlic. Even this you have studied. Okay. So onion सबने देखा रहेगा.
ऑनियन का व्हाट वी नो इज उसका डिस्क जो नीचे होता है दैट इज़ द रेडियो स्टेम, उसमें से रूट्स आते हैं और उसके ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है वो स्केली फ्लैशी लीव्स है जो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है। गार्लिक में वो ओवरलैपिंग होती है। तो इस पार्ट को यूज़ करके भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज कॉम। ओके, कॉम का एग्जाम्पल है अरबी, कोलोकेशिया और उसका जो स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, तो उसका ये डायग्राम है। ओके, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है बट इसका हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ग्रोथ होता है। इसमें भी बड्स होते हैं एंड उसमें स्केल लीव्स होती है, तो वहाँ से ग्रोथ हो सकता है, उन बड्स में से ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, एंड दैट दोज बड्स कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट्स ऑल।